Very good evening to all the participants. I think we should be starting now. Welcome to all of you for today's session. I was just hoping that we cross 50 and then we start, of course, on time, everyone. So thank you very much for joining. I would now request our GM Reliance Industries Limited, Geo Shri Ravindra Prakash Vash ji, to say his opening words about today's session. Thank you, Praveen ji, for giving your valuable time and opportunity to us as a team. We can understand on the financial aspects of the NPS. As we all know, NPS is the National Pension Scheme, and there is no other way to safeguard our retirement planning or later years of the life for the getting some support from the pension what we invest today. So that way government has given us a dual benefit. One is for the we can save the tax also, and we can get the return out of that whatever amount incurred with a time period of 56, I think 60 years, up to 60 years or plus. So being the private employees, we do not have any such pension scheme given by the supported by the organization or government directly. So this is the scheme government has started, which can support to all employees, including all private employees also. So dual benefit is already there. So further, Praveen ji, you can explain in detail what types of plans are there, and how we can start and open the account, and what will be the benefit in the long run, and whomsoever will start early will gain more. So that is the formula of compounding. So I will now hand over to you again, and please. Thank you. Thank you, Ravindra ji. I think you have rightly summarized it well. NPS, जहाँ तक हम लोगों की बात होती है प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से, और गवर्नमेंट सेक्टर में also it is now an approved, NPS is approved as pension plan. आज हम लोगों के बीच में directly NSDL से, which is the governing body for this thing for NSDL is managing the NPS, and they are also promoting it. So NSDL e-governance infrastructure से हमारे साथ में Mr. Anup Agrawal ji is there, who is the AVP Northern India operations, based out of Delhi, with his 17 years of experience in the industry, and especially he has been handling state and central government issues on these particular projects, on the e-governance projects. So he will be talking to you briefly about NPS. And then after that, we have our next speaker, Mr. Bhavani Singh, analyst from Government of India, NPS. And he has also got 10 years of experience, in the areas of NPS, annuities, and pension fund. He is based out of Mumbai. So he will also be giving a detailed presentation about NPS. When I had first discussion with Ravindra ji about this, what I understood is that many of you are not actually have taken it in, and it will be a nice idea to have this informative session. What we have done earlier in many organizations, what we have seen in our other programs also on investor education and awareness, we have found there are a lot of queries about NPS, lot of apprehensions, so I would request all of you कि आप सब लोगों को जो भी doubts या questions regarding this account होते हैं वो जरूर आप पूछिए, because when I learned about it personally, me and my wife both took it. So in terms of benefits, there's enormous. So without any further much ado, because I am not fully the expert on this subject, so I would now hand it over to Mr. Anup Agrawal to take this session forward. Over to Mr. Anup, please. Okay, thank you very much, Praveen ji. So hope my voice is clear to everyone, right, sir?
Yes, sir. Okay. So first of all, I would like to just express my gratitude to the employees of Reliance Industries, Lucknow. So, and to Sri Ravindra Prakash Vaishya ji for just providing this opportunity for their awareness session for their employees into Lucknow region. So basically, National Pension System, it is a initiative by the Government of India. So right, this was the scheme launched for the central government employees, those who have joined after 1st January 2004. Right, so this was the scheme started for central government employees, and after seeing the benefits, slowly it was opened for adopted by the different state governments. So now, if you see, almost all the state governments are currently offering NPS to their employees, and in 2009 May, it was open for any citizen of our country who can just open their account and become a member of national pension system, and they can save for their retirement. And in the same sequence, if you see, in 2011 the scheme was open for corporate sector. So basically, any private limited company, and even the PSUs, more than approximately 8,000 corporates are currently associated with us, and they are offering national pension scheme to their employees. So basically, these are the milestone, if you see, and currently approximately 3.75 crore subscriber are associated with the national pension scheme, and they are saving for their retired life, so that they can sustain their expenditure when they will take the retirement from their active life. So just to start for the just I would like to give a background. So basically, this national pension scheme is also adopted by Reliance Industry also, and approximately 3700 employees are already enrolled into NPS, and their contributions are coming into system. So basically, why it is necessary to join as an corporate, so we'll explain about that point also, because there are certain additional tax benefit available into NPS. So we'll explore those opportunity and just see how it can help you for just giving a support into your retirement during the retirement life. And basically, when we talk all these things, so question comes into mind: what is pension and why we should start it, first of all. So when we talk about the pension, so there are three important factor which bounds every individual to think for their retirement life. अगर ये तीन पहलुओं को हम देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अहम मुद्दे हैं, जो कि हर किसी इंडिविजुअल को सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि उनको अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए जो है डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उनके कॉर्पस में ग्रोथ हो सके और जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो आपको प्राप्त हो सके, और जिससे कि आप जब अपने रिटायर्ड लाइफ से एग्जिट करते हैं, उस टाइम आपको एक मंथली फ्लो के रूप में हर महीना जो है अर्निंग्स होती रहे, जो कि आपके एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करता रहे. सो दैट इनकम वी कॉल्ड एज एन्यूटी और पेंशन. सो अभी जब हम ये बात करते हैं, अगर हम देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है दैट इज कॉल्ड एनएसएसओ. सो एनएसएसओ का काम ये होता है कि वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं. तो उनके हिसाब से ये देखा गया है कि जो एवरेज इंडिविजुअल की जो लाइफ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 73 years in case of male, and 70 around 76 years in case of फीमेल. तो इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगले 15 से 20 सालों तक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की जरूरत है. इट इज अ ह्यूज पीरियड. अगर आप देखें 15 से 20 सालों तक रेगुलर जो है, अगर हर महीने जो है आपको पेंशन के रूप में कुछ राशि प्राप्त होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन वे में जो है इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, जो कि आपकी इस रिक्वायरमेंट को आपके रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा कर सके. हमने देखा है जहां पे भी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, आप देखेंगे जैसे जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वो इंक्रीज होती जाती है. अगर आप जापान का एग्जांपल लें, वहां तो मोर देन 80 years जो है इंडिविजुअल की लाइफ होती है, एवरेज लाइफ जो है. इसी तरह से इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि लोगों की एवरेज लाइफ जो है
वो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है इंडिविजुअल्स के जो है लाइफ ज्यादा है। तो अगर आपको 15 से 20 सालों तक अपने रिटायर्ड लाइफ को फाइनेंस करना है, एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप डिसिप्लिन वे में जो है इन्वेस्टमेंट करें और उससे जो है आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जो कि आपको सपोर्ट करे आपके रिटायरमेंट में। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है इन्फ्लेशन का। अगर हम देखें, इन्फ्लेशन बेसिकली ये जो है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिटेरिएट हो रही है। आज जो चीज आप 100 रुपीज में बाई कर पा रहे हैं, आने वाले 2 सालों के बाद उसी चीज को आपको बाई करने के लिए प्रॉब्ली यू हैव टू स्पेंड 110 रुपीज और 112 रुपीज। तो इसका मतलब अगर आपकी रिटायरमेंट, सपोज करिए कि अभी 30 साल अगर करेंट एज है, 30 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट है, तो अगर आपका अगर 30,000 रुपीज आज का एक्सपेंडिचर है, सो सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लीड करने के लिए यू वुड बी रिक्वायर्ड 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट करीब करीब 1,70,000 के करीब जो है आपको मंथली इनकम चाहिए होगा जो कि आपके रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर को सपोर्ट कर सके। ये दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फैक्टर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट which every individual have to keep in their mind. The third point is also, अगर हम देखें जो हमारा सोशल फैब्रिकेशन है, जो कि पहले क्या होता था, पीपल आर लिविंग इनटू जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। वहां पे जो लोग एक्टिव लाइफ से रिटायरमेंट लेते थे, तो बेसिकली उनके लिए क्या होता था, फैमिली जो है उनके एल्डेस्ट मेंबर का दे टेक केयर ऑफ देम। But because of the job and certain other obligations, we are migrating from our hometown to the different location. हम अलग अलग जगह पे अपना जो है ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लीड करते हैं। अभी जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, nobody would like to compromise on that front. अगर आपने 25-30 सालों तक जो है एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लीड किया है, और रिटायरमेंट के बाद भी ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो जो है सेल्फ सफिशिएंट हो अपने इस रिटायरमेंट लाइफ को जो है लीड करने के लिए, उसके लिए मनी की जरूरत है। उसको ये फ्लो ऑफ फंड जो है आपको तभी मिलेगा जब आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसमें जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा, जिसको चक्रवर्ती ब्याज हम कहते हैं, उसकी वजह से आपका जो कॉर्पस बिल्टअप होगा, दैट विल गिव अ रियली सपोर्ट इन ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट लाइफ। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं जो कि हर किसी को सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि वो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचें और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करें। अब जब हम इसकी बात करते हैं, आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन आज जो हमारा प्रोग्राम है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या रोल्स हैं। आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से जो है जो टैक्स इंसेंटिव दिया हुआ है, उसका फायदा आप कैसे ले सकते हैं, ये स्कीम के माध्यम से आपको कैसे पेंशन प्राप्त होगी, तो ये सारी चीजों को होलिस्टिकली हम कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले जस्ट मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा कि जो ये स्कीम है, इसको मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की गई, विच इज कॉल्ड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 2003 में स्थापित हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। बाद में जो है ये पार्लियामेंट से पीएफआईडी बिल है जो कि पास हुआ, और 2014 में ये नोटिफाई किया गया। तो जिस तरह से दूसरे रेगुलेटर होते हैं मार्केट में, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, जिस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है, उसी तरह से नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सरकार के द्वारा जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है, जो कि इस स्कीम से तहत जो भी रेगुलेशंस हैं उनको पारित करते हैं, और जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं। तो ये जो स्कीम्स है, इसमें अलग अलग एक अनबंडल आर्किटेक्चर है, जहां पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, उनके रोल्स अलग हैं, डिफाइन किए हुए हैं। उसके उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं। इसके अलावा इससे में जो स्पेशल टैक्स इंसेंटिव दिया गया है, उसके बारे में हमको आपको बताएंगे, जिससे एक तरीके से आपको कंबाइंड फीचर आपको मिलता है। एक तो टैक्स इंसेंटिव प्लस रिटर्न्स, दोनों चीजें अगर कंबाइन करके आप इसका फायदा लेते हैं, तो ये आपको आगे जाकर के आपके रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है।
तो ये जो हमारा प्रोग्राम है सब्सक्राइबर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बेसिकली जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि जो इसमें अकाउंट होल्डर हैं उनको जानकारी मिले, या जो प्रोस्पेक्टिव उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो लोग अभी तक प्रॉपर जानकारी की वजह से कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, उसको भी ये दूर करने में सहायता करता है। इसके संग थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी कंपनी है NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके बारे में बैकग्राउंड, बेसिकली कंपनी करती क्या है। सो NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अगर आप देखें तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसके पीछे जो ये था बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस कंपनी का आने का, वो था कि जो फिजिकल में शेयर्स जो ट्रेड होते थे उसको, इस सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए जो है NSDL की स्थापना हुई थी। तो अगर आप देखें आज मार्केट में जो भी आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्स होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, फिजिकल में आपको कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है। तो ये कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट था पेपर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में, क्योंकि पेपर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उस सारी चीज को सिस्टम से रिमूव करने के लिए NSDL की स्थापना हुई। 2004 में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के संग जुड़े, और बहुत सारे जो काम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए उनके एसोसिएशन के संग हम करते हैं, जिसमें आपका जो पैन कार्ड है अगर आप देखेंगे उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस पर NSDL का एड्रेस प्रिंट हो। अभी तक हमारे सिस्टम से करीब करीब 30 करोड़ पैन कार्ड इशू हो चुके हैं, उनके एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग ये सारा जो है NSDL देखती है। इसके अलावा जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपको फॉर्म 16 जो होता है 26 ईयर्स, ये कंप्लीट पहले पेपर फॉर्म में होता था, उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी NSDL के द्वारा किया गया है। इसी कड़ी में 2008 में जो है NSDL को एज एन सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप से बनाया गया, जिसमें जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वी एक्ट एज एन रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी अकाउंट होल्डर है, जब तक उनका अकाउंट एक्टिव होने से लेके जब तक वो सिस्टम में बने रहते हैं, तो सारे इंफॉर्मेशन को सिस्टम में स्टोर करने का काम जो है वो हमारी कंपनी करती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है आधार से रिलेटेड इकोसिस्टम में हम एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एनरोलमेंट से लेकर के जो KYC सर्विसेज हैं या साइन सर्विसेज हैं वो NSDL प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एजुकेशन फाइनेंसिंग के क्षेत्र में भी हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के संग जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो है हमारी वेबसाइट है vidyalakshmi.co.in, उसके ऊपर रजिस्टर करके जो है एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट्स हैं वो विद्या सारथी करके पोर्टल है, जहाँ पे वो अपने आप को अपनी स्कॉलरशिप स्कीम्स को एनरोल कराते हैं और जो स्टूडेंट हैं उनका फायदा ले सकते हैं। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग अलग अलग गवर्नमेंट विभाग के संग या कुछ इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो ये तो एक कंपनी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। अब जो आगे इसमें जो NPS का ओवरव्यू है, इसमें एज एन कॉर्पोरेट आप जब एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या एडिशनल टैक्स इंसेंटिव मिलता है, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको रिटायरमेंट के बारे में जो है एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करने की में सहायता करेगा और एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो इसके संग जो है मैं अभी आगे मेरे कुलीग मिस्टर भवानी सिंह जी हैं जो बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे का आपको डिटेल प्रेजेंटेशन दें NPS के बारे में, NPS में जो फीचर्स हैं, इससे कैसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे इसका फायदा ले सकते हैं, टैक्स में क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं, इससे फाइनली पेंशन कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में वो आपको जानकारी देंगे। ओवर टू मिस्टर भवानी। धन्यवाद अनूप, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। मैं सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि NPS न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम ये सारे एक ही चीज़ है। एट प्रेजेंट NPS का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। दूसरी बात, एज ए सब्सक्राइबर ये प्रेजेंटेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले तो जैसे कि अनूप ने कहा कि पेंशन के लिए ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट है, काफ़ी एडवांटेजेस वाला अकाउंट है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप इस अकाउंट के द्वारा कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, कुछ पैसे लगा के पैसे निकाल भी सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, इसमें चार्जेस बहुत कम है। ये तीन चीज़ों को मिला के
और टैक्स के बारे में बात करेंगे हम स्पेशली। तो ये 4 चीज जब ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि एनपीएस एक सरकारी अकाउंट है जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हम ये चारों को लेके हम बात करेंगे और एज ए सब्सक्राइबर आप भी इन चारों पॉइंट्स को भी लिख लीजिए और कैसे ये आपको आपके पेंशन प्लानिंग और कैसे आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है एनपीएस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को कई सारे डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे तो आप साइड में चैट बॉक्स है उसमें कृपया टाइप कर लीजिए। प्रेजेंटेशन के बाद हम सारे क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन 30 मिनट का रहेगा। आपसे अनुरोध है कि बीच में मुझे ना रोकें क्योंकि ये फ्लो है। कई बार होता है कि आपके सवालों का जवाब आने वाले स्लाइड्स में ही होगा, तो मैं आपसे कुछ मोहलत लूंगा कुछ समय की। मैं आपसे तुरंत प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज होल्ड। नेशनल पेंशन सिस्टम ये एक सब्सक्राइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए। सब्सक्राइबर अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज के लिए है। जैसे कि अनूप ने कहा, हम कई सारे कॉर्पोरेट्स के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। तो एनएसडीएल ये सारे प्रोग्राम्स अभी फिलहाल लखनऊ डिवीजन के लिए कर रहे हैं, बट आगे जाके आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बातचीत चल रही है, शायद वहां पे। कमिंग टू दी प्रेजेंटेशन, हम स्टार्ट करेंगे एनएसडीएल कंपनी के बारे में क्या क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैं क्विकली रन करूंगा। एनएसडीएल एज ए कंपनी आधार अकाउंट देखते हैं, डीमैट अकाउंट जैसे कि आपको पता है लास्ट डिपॉजिटरी हम पैन कार्ड इश्यू करते हैं, 26 केएस का डिजिटाइजेशन किया है और एनपीएस अकाउंट और अटल पेंशन योजना ये भी। इसके अलावा कई सारे अदर सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी एनपीएस एनएसडीएल का हाथ, जिसमें है विद्यालक्ष्मी, विद्यासारथी, ई केवाईसी और ई साइन जो आधार के द्वारा होता है, और हम जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर भी है, ये तो आपको बताओ। नाउ हम एनपीएस के बारे में ज्यादा बात क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग कम एज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं एनपीएस में, पेंशन प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं और ये मैंडेट करता है। तो इससे क्या है, आपका जो पैसा है वो सही जगह पे लगे। नाउ यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल दिया है। एक बंदे का नाम है रमेश जो कि 40 वर्ष का है और सुरेश जो कि 30 वर्ष का है। हमने एग्जांपल दिया है कि दोनों ने 10,80,000 10.8 लाख दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया 60 साल तक। तो क्योंकि सुरेश 30 साल के हैं तो उनको हर महीने मात्र 3,000 रुपए देने पड़े। क्योंकि रमेश 40 वर्ष के हैं तो उनको 4,500 देने पड़े इस ये कॉर्पस 10.8 लाख लाने के लिए 60 साल तक। इन्होंने अगर इन्वेस्ट ये हर महीने करते रहे और इनको करीब 8% रिटर्न मिला, तो आप देखेंगे रमेश जो कि 40 वर्ष के हैं उनका कॉर्पस 60 साल में ये इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने 10.8 लाख किया, जो 8% का चक्रवर्ती इंटरेस्ट जो बोलते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर होता है तो करीब 26 लाख हो जाता है। पर सुरेश वो कम आयु के थे, उनका देखेंगे करीब 45 लाख हो जाता है, ए बिग डिफरेंस ऑफ 18 लाख। तो मैं यही इस स्लाइड में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो कम उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा, ये सिर्फ एनपीएस के बारे में नहीं है, कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं और, ये सभी के लिए लागू होता है। एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको मैंडेट करता है कि आप कम आयु से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना एनपीएस का आर्किटेक्चर कैसा काम करता है, ये कोई लग रहा है स्क्रीन में कोई लाइन ड्रॉ कर रहा है। आई थिंक मॉडरेटर जी प्लीज इसको आप कंट्रोल कीजिए। स्क्रीन में किसी ने लाइन ड्रॉ कर What you can do, I think you can just you are sharing the screen, you can stop annotation on the Bhavani, you will get that on your screen। एक तो आप क्लियर कर लीजिए and we are just stop। अच्छा ठीक है। हाँ, और आपके पास एक वो आ रहा होगा ऑप्शन टू स्टॉप एनोटेशन। हाँ एनोटेशन
मैंने एनोटेशन में क्लिक किया हूँ, बट उसमें स्टॉक का ऑप्शन नहीं। एनीवेज, वो clear all स्टॉक drawings। हाँ, I ठीक है, will, मेरे पास क्लियर ऑल ड्राइंग्स आ रहा है, मैं you क्लियर। will also get to see that who is doing it, because for a moment it shows that who is doing it on your screen, because presenter only can see that who is doing it. And अच्छा अच्छा ठीक है, कभी भी फिर से कर दिया, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई ना करे। हाँ, because हमने वैसे सस्पेंड हटाया हुआ था, but somehow it is coming, but ओके, वी विल कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन नाउ। ये आर्किटेक्चर आप देखेंगे एनपीएस का। इस एनपीएस आर्किटेक्चर में ये बेसिकली बता रहा है कि कैसे एनपीएस काम कर रहा है। आप देखेंगे सबसे ऊपर है पीएफआरडीए, जो कि रेगुलेटर है एनपीएस का, और सबसे नीचे है सब्सक्राइबर्स, आप और मेरे जैसे सब्सक्राइबर्स। बाएं तरफ एक एंटिटी है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। शेयर मार्केट के टर्म में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो ये एक ब्रोकर है। इसका काम क्या है? ये फॉर्म लेंगे आपसे मतलब आपकी कॉर्पोरेट, आप अपने कॉर्पोरेट को देंगे एचआर डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को फॉर्म देंगे। सब्सिक्वेंटली पैसे आपके कटेंगे एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा, वो अगेन पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास जाएंगे, और उनके द्वारा ही फिर एनएसडीएल में आता है, जो कि सब्सिक्वेंटली प्रोसेस होता है। देन एनएसडीएल के पास जैसे फॉर्म भेजते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, तो हम आपको अकाउंट खोलते हैं और आपको उस अकाउंट की जानकारी एसएमएस और ईमेल के द्वारा दे देते हैं। साथ ही साथ पैसे आते हैं तो एनएसडीएल में रिकॉर्ड आता है, और वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं पेंशन फंड मैनेजर के पास। आप देखेंगे इस आर्किटेक्चर में सबसे सेंट्रल में है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, विच इज एनएसडीएल। एक सब्सक्राइबर 30 वर्ष की आयु में अगर से फॉर एग्जांपल ज्वाइन कर रहा है एनएसडीएल, तो उस आगे आने वाले 60 वर्ष तक वो कई बार कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो कई बार एड्रेस चेंज करेंगे, नॉमिनी चेंज करेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करेंगे, बहुत सारे ट्रांसैक्शन होंगे। सारे ट्रांसैक्शन का खाता एनएसडीएल रखता है, और ये सारे ट्रांसैक्शन का डाटा रिट्रीवेबल है सब्सक्राइबर के द्वारा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको 20 साल पहले का ट्रांसैक्शन डिटेल चाहिए, आप सिंपली जाइए, लॉग इन कीजिए इंटरनेट में अपने अकाउंट में, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कीजिए किस वर्ष की आपको डिटेल चाहिए, क्लिक कीजिए और आपको पूरा डिटेल। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 से लागू हुआ था, तो जो एम्प्लॉय 2012 से जुड़े हैं एनपीएस में, वो अपना 2012 से सारा डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, उसमें आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आईटीआर फाइलिंग में काम करता है। 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस में खाता खोल सकता है। नाउ एनपीएस में खाता खोलना मतलब यू आर ओपनिंग एन अकाउंट, जिसको कहते हैं रिटायरमेंट अकाउंट। एनपीएस की भाषा में इसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। ये यूनिक है, ये मल्टीपल नहीं हो सकता। कई लोगों को शंका होता है कि मैं दूसरा जॉब ज्वाइन करूंगा या मैं बिजनेस करूंगा, तो क्या मुझे अलग अकाउंट खोलना है? नहीं, आपका सेम अकाउंट रहेगा 60 वर्ष की आयु तक, और वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर सरकार में भर्ती हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट से, अकाउंट आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अनूप ने जैसे कहा, एनपीएस करीब 8000 कॉर्पोरेट्स ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, और सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सारे सरकारें ऑफर करती हैं एनपीएस। तो आपको नया अकाउंट कहीं नहीं खोलना है, कहीं पे भी जाइए आप शिफ्ट कर लीजिए। दैट मीन्स ये यूनिक है और ये पोर्टेबल है अक्रॉस जॉब्स एंड ज्योग्राफीज। नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि एनपीएस सिर्फ पेंशन का अकाउंट नहीं है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट का भी फायदा है, जिसमें आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। उसके बारे में मैं आगे स्लाइड में बात करूँगा। और विड्रॉल पार्शियल है, फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन है, और टैक्स बेनिफिट है यूनिक एनपीएस में। एक तो है एटीसी जो कि 1.5 लाख का, एडिशनल एटीसीसीडी 1 भी, तो 50,000 एडिशनल डाल सकते हैं। प्लस क्योंकि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, तो कॉर्पोरेट के लिए स्पेशली 10% ऑफ सैलरी मीन बेसिक प्लस डीए आप एडिशनली ले सकते हैं इस 1.5 लाख के ऊपर। वो कैसे लेंगे वो आगे वाले स्लाइड्स में। तो पहले तो हम 50,000 का बेनिफिट का फायदा बताएंगे कि आप कैसे किस तरह आपको बेनिफिट करता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, एक बंदा है 50,000 का बेनिफिट ले रहा है, हर साल 50,000 लगा रहा है एनपीएस में। प्लीज नोट, 50,000 ओवर एंड अबव आपका एटीसी का लिमिट है, जो कि 1.5 लाख का है एट प्रेजेंट।
तो 1.5 लाख के ऊपर आप 50,000 एडिशनल एनपीएस में टीयर 1 खाते में लगा सकते हैं और उसका ग्रॉस डिडक्शन ले सकते हैं अपने सैलरी से। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया विद एनपीएस और विदाउट एनपीएस, राइट साइड में विदाउट एनपीएस। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि चलो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% टैक्स स्लैब में बंदा, तो ये जिसने विद एनपीएस मतलब वो 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 50,000 इन्वेस्ट कर दिया उसने, तो उसमें तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ा, तो उसके 50,000 रह गए। प्लस पर बाद में साइड में आप देखेंगे विदाउट एनपीएस, उसने उस बंदे ने 50,000 का बेनिफिट नहीं लिया। इस केस में उनको टैक्स देना पड़ा 50,000 के ऊपर, तो 30% के हिसाब से आपको अगर टैक्स स्लैब 30% में बैठ रहे हैं आप, तो उसमें करीब 15,000 आपने टैक्स दे दिया। ये हर साल 15,000 आप सरकार को देते जा रहे हैं क्योंकि आपने बेनिफिट नहीं लिया। तो अगर ये हम 8% के हिसाब से 20 साल तक अगर यही क्रम चलता रहा, तो देखेंगे 8% के हिसाब से इनका जो 50,000 है, ये क्योंकि इन्वेस्ट हो रहा है तो ये करीब 22.8 लाख हो जाएगा। पर विदाउट एनपीएस वाले ने बेनिफिट नहीं लिया, तो इनका क्या, ये हर साल 15,000 टैक्स पे कर रहे हैं, ये खुश है उसमें, तो इनका जो 50,000 एक्चुअली जो इनकम है वो 35,000 हो जा रहा है, और जो कि 8% के रिटर्न्स के हिसाब से 16 लाख मात्र रह जाता है। और अगर यही 10% हम ले जाते हैं तो आप देखेंगे करीब करीब 28 लाख का, और यहाँ पे करीब सिर्फ 20 लाख। तो एट 10% ऑफ रिटर्न डिफरेंस है 50,000 का 8.6 लाख का करीब करीब। तो ये फायदा है एनपीएस का कि ये बेनिफिट आप बिल्कुल लें 50,000 का 80CCD 1B का, क्योंकि ये यूनिक है और किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडिया में और किसी में भी ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। कमिंग टू आपके सैलरी स्ट्रक्चर में कैसे दिखेगा, थोड़ा पेचीदा है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके सैलरी से और इसमें आपका सेविंग होगा कुछ पैसे का, कुछ पैसे बच जाएंगे तो आप ही को काम आएगा सर। तो सुन लीजिएगा इसमें ध्यान देके, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने एक बेसिक सैलरी स्लिप दिया है कि मतलब समझाने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है सैलरी स्लिप, बट एक इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से हमने दिखाया। तो यहाँ पे हमने एक बंदे का सैलरी 15 लाख बताया है, एक बंदे का 25 लाख। यहाँ पे विदाउट एनपीएस और विद एनपीएस का कॉलम दिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में विदाउट एनपीएस और विद एनपीएस आप देखेंगे, अगर किसी का अगर 7.5 लाख का सैलरी तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन उसमें 10% जनरली करते हैं, तो 75,000। आप 15 लाख में अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ग्रॉस इनकम सपोज 15 लाख हो जाता है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन क्योंकि विद एनपीएस आपका 75,000, तो ये माइनस हो जाएगा आपके ग्रॉस इनकम से। तो आप देखेंगे विद 15 लाख वाली सैलरी का जो ग्रॉस टोटल इनकम में कैसे फायदा हो रहा है। तो इन्होंने 80C में 1,50,000 का तो इन्वेस्टमेंट कर दिया है सपोज। नाउ 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज एज ए कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, तो ये 10% ऑफ सैलरी लिमिटेड है। तो 7,50,000 का 10% होता है 75,000, तो उन्होंने 75,000 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया अंडर 80CCD2। प्लस 1B का भी फायदा ले लिया, 80CCD 1B ये 50,000, प्लस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये तो 50,000 इस साल का है, पिछले साल 40 था, इस साल 50 हो गया, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिल गया। तो आप देखेंगे कि सैलरी ऑफ 15 लाख में टैक्सेबल टोटल इनकम विदाउट एनपीएस वाले का करीब 13 लाख हो जाता है, और विद एनपीएस वाले का घट के 11.85, और उसमें टैक्स जोड़ेंगे अगर हम 10-20-30% के हिसाब से, तो आप देखेंगे टैक्स सेविंग्स विद एनपीएस वाले का करीब करीब 40,000 हो जाता है 15 लाख सैलरी में, अगर आप सिर्फ एनपीएस का टैक्स का पूरा फायदा लेते हैं। सिमिलरली जो 25 लाख के सैलरी वाले का है उनका करीब करीब 55,000 टैक्स सेविंग हो जाता है अगर उन्होंने एनपीएस के सारे टैक्स प्रावधानों का लाभ लिया है। तो ये बेसिकली स्लाइड हम बता रहे हैं कि ये एक साल का आपको फायदा मिल रहा है, और ये हर साल आप करते रहेंगे, आपका टैक्स स्लैब बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टैक्स स्लैब बढ़ेगा आपका सेविंग्स भी बढ़ता रहेगा एनपीएस में। तो इस तरह एनपीएस का फायदा 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 के टैक्स अंतर्गत आप ले सकते हैं।
तो ये वाला स्लाइड तो हमने बात कर लिया। हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट, तो ये आपके पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो आपको अच्छे से ऑलरेडी कर रहे हैं। कमिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग ऑलरेडी, क्योंकि आप रिलायंस इंडस्ट्री में हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट savvy हैं, बट जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। तो एनपीएस की इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? एनपीएस में फंड मैनेजर है, जिसको हम पेंशन फंड मैनेजर्स बोलते हैं। एट प्रेजेंट 7 में से 3 सरकारी हैं, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी, और 4 है प्राइवेट, बिरला, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक। पहले रिलायंस भी था, पर बिकॉज ऑफ मर्जर वो रिलायंस हट गया, राइट। नाउ इन 7 में से किसी भी एक पेंशन फंड मैनेजर को सब्सक्राइबर चूज कर सकते हैं, और ये चेंज भी कर सकते हैं साल में एक बार। साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर में एक बार। तो आप चूज कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। चूज कैसे करेंगे मतलब कौन सा पेंशन फंड मैनेजर अच्छा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में एक स्लाइड हमने दिया है। एनपीएस आपको पेंशन फंड मैनेजर का तो चॉइस दे ही रहा है, साथ ही साथ आपको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, इसका भी ऑप्शन देते हैं। दैट मीन्स एक्टिव चॉइस। तो एक्टिवली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ आप पैसे लगाएं। कहाँ लगाएं मतलब एसेट क्लासेस। एनपीएस में 4 है एसेट क्लासेस, एक तो है शेयर मार्केट और इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेट फंड्स। ये 4 एसेट क्लास में सब्जेक्टेड टू अपर कैप। अपर कैप मीन्स शेयर मार्केट और इक्विटीज में आप मैक्सिमम 75% ही लगा सकते हैं पैसे। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप 100% लगा सकते हैं, और ऑल्टरनेट फंड में मात्र 5%। तो ये अपर कैप रेगुलेटर ने डिसाइड किया है, तो इसके अंतर्गत आप अपने फंड को अलॉकेट कर सकते हैं और एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा अभी, तो 75% इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं आप, या कम उम्र के हैं तो 75% ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, मेरा पैसा, मुझे लगता है कि मेरा पैसा सेफ रहे वही मुझे अच्छा है, तो आप 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर ले लीजिए। तो ये ऑप्शन आपके पास हर समय है इन एक्टिव चॉइस। तो आप एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं अपना फंड। आप साल में 2 बार परसेंटेज लोकेशन चेंज कर सकते हैं इन एक्टिव चॉइस। ये तो हुआ एक्टिव चॉइस उनके लिए जो जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज है या जिनके पास टाइम है काफी। पर उनके लिए क्या, जो जिनके पास शायद टाइम ना हो, तो उनके लिए एक ऑप्शन है ऑटो चॉइस का, वेयर आपके फंड जो है वो ऑटोमेटिकली अलॉट होते हैं, रीबैलेंस होते हैं। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल फंड। कैसे होता है मैं बताता हूँ। 35 वर्ष की आयु तक एक मॉडरेट ऑटो है जिसमें 50% मैक्सिमम इक्विटी ले सकते हैं, तो उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 35 वर्ष की आयु तक 50% आपका जो पैसा है कॉर्पस वो इक्विटीज में लगेगा शेयर मार्केट में, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 20% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सरकारी प्रतिभूति में। जैसे आपका आयु 36 वर्ष का होंगे ऑन द डेट ऑफ बर्थ आपका जिस दिन रहेगा दूसरे दिन ये रीअलोकेट होगा, शफल होगा। कैसे? 3% शेयर मार्केट से कम होगा, 2% कॉर्पोरेट बॉन्ड से, और ये 5 जो घटे हैं ये ऐड हो जाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर 37 इयर्स के आप हो गए, 38 इयर्स के, अगेन डेट ऑफ बर्थ में अगेन रीअलोकेट होगा, अगेन शेयर मार्केट से 3 घटेगा, 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड से घटेगा, ये 5 ऐड हो जाएंगे। तो हर डेट ऑफ बर्थ में शफल होगा इस तरह कि आपका फंड रिस्कियर एसेट जो कि इक्विटी से वहां से शिफ्ट होके सेफर एसेट जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड में शिफ्ट होता जाएगा हर डेट ऑफ बर्थ ऑटो चॉइस में। और ये 55 वर्ष की आयु तक होता रहेगा। 55 वर्ष में आपका कॉर्पस का परसेंटेज एलोकेशन इस तरह रहेगा, 10% शेयर मार्केट, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड और 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना। एक सब्सक्राइबर को ऑटो से एक्टिव, एक्टिव से ऑटो चेंज करने का भी ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं साल में 2 बार।
प्लीज नोट, पेंशन फंड मैनेजर सिलेक्शन साल में एक बार आप चेंज कर सकते हैं, और स्कीम प्रेफरेंस चेंज एक्टिव ऑटो ये साल में मैक्सिमम 2 बार, साल में मतलब फाइनेंशियल। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग टू एग्जिट, अभी हर वर्ष आप पैसे लगा रहे हैं, हर वर्ष हर महीने आपका पैसे इन्वेस्ट हो रहा है, और 60 वर्ष की आयु पे सपोज एक कोई कुछ बोलना चाह रहा है या तो 60 वर्ष की आयु में आपका कॉर्पस सपोज हमने एग्जांपल लिया 50 लाख का, 50 लाख का कॉर्पस हो जाता है एनपीएस में। तो एनपीएस की रूल ये कहते हैं कि आउट ऑफ दैट 50 lakhs मैक्सिमम 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, मींस 30 lakhs, अगर 50 लाख का हमने एग्जांपल लिया है, तो दैट 60% विड्रॉल इज टैक्स फ्री। प्लीज नो, ये इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको कैसे भी अपने मर्जी के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं। पर साथ ही साथ 40% जो कॉर्पस है कम से कम उसका आपको एन्युटी लेना है, एन्युटी खरीदना है, मतलब पेंशन खरीदना है। इस केस में 50 लाख के केस में कम से कम 20 लाख का आपको एन्युटी लेना है और खरीदना है। खरीदना है मतलब एन्युटी आप पेंशन आप किसी कंपनी से खरीदें। तो ये 10 कंपनियां अभी हैं जिनमें किसी में से भी आप पेंशन खरीद सकते हैं। पेंशन या पेंशन स्कीम कौन सी 10 कंपनियां हैं? अगेन HDFC, ICICI, LIC, SBI, स्टार यूनियन, LIC, कोटक, इंडिया फर्स्ट, मैक्स लाइफ, कैनरा HSBC, OBC एंड बजाज एलियंस। इनकी सारी जानकारी, एन्युटी स्कीम्स की जानकारी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां जाके कितने रिटर्न्स, कितना पेंशन मिलेगा, कितने पैसे पे मिलेगा, सारा एक चार्ट हमने दिया है, कैलकुलेटर भी दिया है एन्युटी रिटर्न्स में। हमने एक एग्जांपल लिया है इंडिकेटिव पेंशन अमाउंट। अगर प्रीवियस एग्जांपल का हम देखेंगे, हमने यहाँ पे सपोज किसी ने 20 लाख का एन्युटी खरीदा है सपोज LIC से, तो हमने नीचे चार्ट के नीचे आप देखेंगे एक स्कीम है एन्युटी पेएबल फॉर लाइफ। कई सारे एन्युटी स्कीम्स है और पेंशन स्कीम्स। एक स्कीम है कि मुझे ही सिर्फ पेंशन मिले, जब तक मैं जीवित हूँ मुझे मिलेगा, मतलब एन्युटी फॉर लाइफ टू मी ओनली, उसके बाद वो किसी को नहीं मिलेगा। तो आपने 20 लाख का अगर वो एन्युटी फॉर लाइफ लिया तो उस केस में इन ऑप्शन ए LIC में, LIC का है, इसमें करीब 12,991 रुपए आपको मिलेंगे, मतलब करीब 13,000 रुपए हर महीने। दूसरा स्कीम है जॉइंट लाइफ विद आरोपी, मतलब मुझे पेंशन मिले, मेरे बाद मेरे हस्बैंड या वाइफ को मिले, और हम दोनों के बाद जो पैसे का आपने पेंशन खरीदा था वो पैसा मेरे नॉमिनीज को और लीगल हायर्स को सेटल हो जाए। इस केस में आप देखेंगे ये घट के हर महीने करीब करीब 8,750 रुपए हो जाते हैं। तो इस तरह के कई सारे पेंशन स्कीम हैं जो कि सब्सक्राइबर फ्री हैं, ले सकते हैं किसी कोई भी चॉइस करके। इन सारे कंपनियों के वेबसाइट में आप जाके, हमने लिंक भी दिया हमारे वेबसाइट पे, जस्ट जाके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये तो हुआ 60 इयर्स के बाद आपने विड्रॉ कर लिया। दूसरा ऑप्शन है एनपीएस में 60 इयर्स में आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस एनपीएस में टैक्स बेनिफिट है। तो कई लोग हैं कि कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू मीन्स 70 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन के लिए ध्यान रखिएगा, आपको हमें इंफॉर्मेशन देना है कम से कम 15 दिन पहले, मतलब 1 महीने का आप रखिए कि अपने एम्प्लॉयर को या अपने पीओपी को आप बता दीजिए ईमेल के द्वारा या लिखित में लेटर के द्वारा कि मुझे अपना अकाउंट कंटिन्यू करना है पहले ही, 60 वर्ष से पहले, प्लीज नो, कम से कम 1 महीना पहले। वैसे रेगुलेटर कहता है 15 दिन, बट हम छुट्टी ये सब जोड़ के हम चाहते हैं कि ऑन ए सेफर साइड 1 महीने पहले कम से कम आप लिखित में दे दीजिए, तो NSDL के पास आ जाएगा, NSDL उसको कंटिन्यू करवा देंगे। दूसरा ऑप्शन कंटिन्यूएशन में क्या है कि आपका अकाउंट कंटिन्यू हो गया, जैसे आप मैनेज कर रहे थे, पैसे लगा रहे हैं, आप टैक्स की बेनिफिट ले रहे थे जैसे 60 साल के पहले, उसी तरह 60 साल के बाद आपका कंटिन्यू हो गया, सिंपल, मैक्सिमम 70 साल तक।
और इस कंटिन्यूएशन पीरियड में आप अपना अकाउंट कभी भी क्लोज भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है डिफरमेंट का। डिफरमेंट में ध्यान रखिए, यही है, डिफरमेंट भी कंटिन्यूएशन है पर उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और डिफरमेंट में क्या है, दो पोर्शन होता है एनपीएस में, एक होता है पेंशन पोर्शन और एक होता है लमसम पोर्शन, जो कि 40-60 मैंने बताया था। तो यहाँ पे डिफरमेंट में क्या होता है, जो पेंशन पार्ट है ना, एन्युटी, ये मैक्सिमम 3 साल के लिए डिफर होता है, मतलब 63 ईयर्स तक। और जो लमसम पोर्शन है ये मैक्सिमम 70 ईयर्स तक डिफर होता है। डिफरमेंट में आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपका पैसा पड़ा हुआ है, रिटर्न्स आ रहा है, रिटर्न्स आता रहेगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न्स उसके हिसाब से आता रहेगा, राइट। तो ये 3 है आपके पास ऑप्शन आफ्टर 60 ईयर्स। तो आप देखेंगे एनपीएस काफी सारा अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देगा। और कई बार होता है कि मुझे क्लोज करना है, तो उस केस में कम से कम 10 साल तक का लॉक इन है, मिनिमम 10 ईयर्स का लॉक इन के बाद आप अपना अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं। प्लीज नोट, क्लोजर में क्या है कि मैक्सिमम आपको 20% आपके कॉर्पस का ही वापस मिलेगा लमसम, और मिनिमम 80%, 80% आपको पेंशन खरीदना है इन केस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर। हाँ, अगर कॉर्पस आपका 1 लाख के नीचे है तो आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं, और इन द इवेंट ऑफ डेथ आपका 100% कॉर्पस नॉमिनीज को सेटल हो जाएगा। कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट, ये तो था हम पेंशन के बारे में बात कर रहे थे, टीयर 1 खाते के बारे में। एनपीएस में एक ऑप्शन है टीयर 2 खाते का भी। टीयर 2 खाता जो कि फ्री है, क्या क्या फायदे हैं इसमें बताता हूँ। इसमें अकाउंट खोलने के लिए कोई चार्जेस नहीं, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं, ये फ्री है। इसका फायदा क्या है, ये और ये जीरो बैलेंस है, आप जीरो बैलेंस रखिए इसमें, कोई ये सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह जीरो बैलेंस रखिए, आप कभी भी पैसे लगाइए, कभी भी निकालिए टीयर 2 खाते में। प्लीज नोट, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है टीयर 2 खाते में, क्योंकि इसमें पैसे आप लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसलिए कोई टैक्स बेनिफिट नहीं एज पर रेगुलेटर। पर आप यही सोचेंगे कि मेरा तो सेविंग्स बैंक अकाउंट कई सारे बैंक में है, 2-2 अकाउंट है, 3-3 अकाउंट है, मैं इसमें क्यों टीयर 2 खाता खोलूं, ये भी तो सेविंग्स बैंक की तरह काम करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, सेविंग्स बैंक खाते में एफडी और सेविंग्स बैंक का रेट क्या चल रहा है? आपको जान के हैरानी होगी कि 2.5% से ज्यादा नहीं दे रहा है एक बैंक, कोई कोई बैंक थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, पर एक्चुअल आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम आता है, 2.5%। मैं कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा एनपीएस में रिटर्न कितना है। प्लीज नोट, एनपीएस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट इक्विटीज की और कॉर्पोरेट बॉन्ड की नहीं बात करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने करीब करीब 9.5% का रिटर्न दिया, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो 9.5 में लोअर एंड में बोल रहा हूं, इट इज एक्चुअली डबल डिजिट, क्योंकि ये पब्लिक प्रेजेंटेशन है तो हम लोग डबल डिजिट पे नहीं बात करते। ये रिटर्न्स की सारी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है, उसके लिए एक अलग स्लाइड है, मैं बात करूँ, राइट। नाउ क्या क्या फायदे हैं इसमें, कोई जीरो बैलेंस अकाउंट है, और इसमें आप सेपरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रख सकते हैं, सेपरेट पीएफएम, सेपरेट आप एक्टिव चॉइस रखिए। टीयर 1 में आपने 75 सपोज 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखा, तो आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे 75% एक्सपोजर ले लीजिए शेयर मार्केट की, आप ले सकते हैं। एंड प्लीज नोट, पीपल आर मेकिंग मनी थ्रू टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंड मैनेजमेंट चार्जेस नहीं लग रहा है, और ये एएमसी नहीं लग रहा है, किसी तरह का चार्जेस नहीं है, ये फ्री अकाउंट है, कोई ब्रोकरेज नहीं। आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो आप शेयर्स खरीदेंगे तो एसटीटी दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, आईजीएसटी दे रहे हैं, टर्नओवर फीस दे रहे हैं, कितने तरह के तो चार्जेस ही लग जाते हैं, फिर इनकम टैक्स भी दे रहे हैं उसको, तो इतने सारे चार्जेस दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में तो आपको मुझसे बेहतर पता है कि कितने सारे चार्जेस, और कमीशन सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड में तो कमीशन इंश्योरेंस में लगता है कमीशन, यहाँ वो सब कुछ नहीं। चार्जेस कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
टीयर 2 कैसे खोलेंगे? चलो ये तो फायदा है टीयर 2 का। आप कैसे खोलेंगे टीयर 2? आप अपने कॉर्पोरेट के द्वारा, पीओपी के द्वारा टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ एनएसडीएल ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रखी है टीयर 2 की, जहां पे आप ENPS बाय एनएसडीएल सर्च कर लीजिए। ENPS, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनपीएस बाय एनएसडीएल सर्च कर लीजिए, आपको वेब पेज आ जाएगा, क्लिक कर लीजिए। वहां पे एक्टिवेशन, टीयर 2 एक्टिवेशन का एक विंडो आएगा। क्लिक ऑन दैट, आपका प्रान नंबर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ओटीपी वेरीफाई करके सिंपल आप टीयर 2 खाता खोल सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन, नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। कोई केवाईसी अलग से नहीं देना है, कोई पेपर वर्क नहीं, घर बैठे बैठे आपका अकाउंट 2 मिनट में खुल जाएगा। ऑनलाइन पैसे लगाइए, ऑनलाइन पैसे निकालिए। इतना बड़ा फायदा जब आपको सामने से आ रहा है तो क्यों नहीं टीयर 2 अकाउंट खोलना चाहिए? मेरे हिसाब से टीयर 2 अकाउंट आपको बिल्कुल। Okay, now coming to charges. चार्जेस का कैसे फर्क पड़ता है आपके अकाउंट में? हमने तो बात की कि हम कई बहुत जगह पे जाते हैं, हम कुछ भी चीज खरीद लेते, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम सिर्फ ध्यान देते हैं कि उसमें रिटर्न्स कितना है, कि इसका रिटर्न्स कितना है, और रिटर्न देखा कि वो बोल दिया 12% रिटर्न है, ओके मैंने खरीद लिया चलो। पर हम ये नहीं देखते कितना चार्जेस है, कितना कमीशन है, कितना ब्रोकरेज है, कितना टैक्स है। हम ये नहीं देखते अक्सर। मैं भी नहीं देखता। मैं पहले नहीं देखता था जब तक मुझे एनपीएस के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि एनपीएस के बारे में हमको अभी ज्ञान है तो हम सिर्फ टीयर 2 में इन्वेस्ट करते हैं और पैसे बनाते हैं थोड़े बहुत। नाउ चार्जेस के बारे में हमने स्लाइड दिया। सपोज 50,000 का हमने अगेन एक एग्जांपल लिया है, आपने 20 साल तक 50,000 लगा। 2 स्कीम में, एक ऑप्शन ए है, एक स्कीम है ऑप्शन ए, और एक है ऑप्शन बी, कोई दूसरा स्कीम है। ऑप्शन ए में चार्ज है 0.15 और ऑप्शन बी में है सपोज चार्जेस 1.5। अगर ये 20 साल तक मैं लगाता रहूंगा 50,000 और मुझे 10% का रिटर्न आएगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए जिसमें चार्ज 0.15% कम था, उसमें मेरा कॉर्पस 20 साल के बाद करीब करीब 31 लाख हो जाएगा। और ऑप्शन डी में जिसमें चार्जेस ज्यादा था 1.5%, उसमें करीब करीब 25-26 लाख रहेगा। ए बिग डिफरेंस ऑफ 5 लाख। तो आप देखेंगे चार्जेस आपके कॉर्पस को कितना इफेक्ट करता है। अभी ये स्लाइड हमने स्पेसिफिकली क्यों दिखाया है, क्योंकि ऑप्शन ए इज एनपीएस। एनपीएस में 0.15% चार्जेस है। सर इतना कम चार्जेस आपको, आई डोंट थिंक कोई सरकारी प्रोडक्ट नहीं, कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करे। और ऑप्शन बी 1.5% ऑन ए लोअर एंड। आपको पता है कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लीजिए उसमें चार्जेस 2-2.5% रहता ही है। कमीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो चार्जेस की, कमीशन अलग होता है। एनपीएस में ये सब। कमिंग टू रिटर्न्स पार्ट, मैं रिटर्न्स की बात कर रहा था। ये सरकारी वेबसाइट है एनपीएस ट्रस्ट की। यहाँ पे आपको रिटर्न्स की फाइल अवेलेबल है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल, इफ दे वांट द चार्जेस लिस्ट, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या तो मैं नफाड़े साहब हैं जो आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं, नफाड़े साहब को मैं आप अगर रिक्वेस्ट कर देंगे तो मैं उनको चार्जेस की जो रिटर्न्स की फाइल मैं शेयर कर दूंगा। रिटर्न्स इक्विटीज में मिनिमम हमने दिया, यहाँ पे लिखा है 10.2, कॉर्पोरेट में 10.2, अगेन गवर्नमेंट पे 9.96 दिया है, करीब करीब 9.5 से 10। तो आप देखेंगे करीब करीब 9.5 के ऊपर ही रिटर्न्स एनपीएस ने दिया है सिंस इंसेप्शन हर साल, और ये सीएजीआर बेसिस पे। ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये सारे चार्जेस अवेलेबल है पब्लिकली, एक्सेल शीट में है, कौन से स्कीम के कहाँ, एसबीआई के कितने, हर पीएफएम के कितने हैं चार्जेस हैं, सारा डिटेल में एक्सेल शीट में अवेलेबल है ट्रस्ट की वेबसाइट में, और हमारे पास एनएसडीएल के पास, आप हमसे कभी भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। कमिंग टू सब्सक्राइबर सर्विसिंग, एनएसडीएल आपको आपके एनपीएस खाते में क्या क्या ऑप्शन, क्या फैसिलिटीज देते हैं। एक तो है आप इलेक्ट्रॉनिक पैन आपका डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार होता है पैन कार्ड मिला नहीं या खो गया है, तो आप डाउनलोड करके लैमिनेट करके रख लीजिए, आपका कार्ड हो गया। ऑनलाइन आप अपना
अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। अगर लॉग इन नहीं हो रहा है, पासवर्ड लॉक हो गया, तो आप इंस्टेंटली रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर रहना जरूरी है, एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है। आप लॉग इन करके अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट मीन्स स्कीम प्रेफरेंस, आप ऑनलाइन स्कीम प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टीयर 2 खाता खोल सकते हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट टीयर 2 में कर सकते हैं। ऑनलाइन टीयर 2 से विड्रॉ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपना नॉमिनी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है एनएसडीएल। साथ ही साथ आपको अलर्ट्स आते होंगे, हर महीने कंट्रीब्यूशन होता है तो एसएमएस और ईमेल अलर्ट आता है। ये फ्री है, प्लीज नोट, एनएसडीएल एसएमएस अलर्ट के चार्जेस नहीं लेता है। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए, और ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है npscra.nsdl। इसमें जाके आप सारे फॉर्म्स, एनपीएस के बारे में जानकारी, हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स, कोरा, फेसबुक, यूट्यूब, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट और एनपीएस खाता ऑन द गो मैनेज भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है एनपीएस बाय एनएसडीएल, आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से वहाँ पे, और अपना अगर आप टीयर 2 खाते में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑन द गो आप यूज कर सकते हैं। जो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सेम चीज़ आप मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट हमने एक डीरेमिट की ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस की है। डीरेमिट क्या है कि आप एसआईपी करा सकते हैं। टीयर 2 खाता आपने ओपन किया, आप एसआईपी करा दीजिए, हर महीने अपने आप एसआईपी के द्वारा आपका पैसा लगता रहेगा और सेम डे एनएबी आपको मिलेगा। ये फैसिलिटी का भी आप लाभ ले सकते हैं। सो एट द एंड हम देखेंगे कि एनपीएस एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक फ्लेक्सिबल, इसमें काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है आपको, पोर्टेबल अक्रॉस जॉब्स एंड ज्योग्राफीज है, रेगुलेटेड है, पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड है, इसमें यूनिक टैक्स सेविंग्स है, और जो भी स्ट्रक्चर हमने बताई है ट्रांसपेरेंट है। प्लीज नोट, ये वही स्कीम है जो भारत सरकार और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के लिए देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सेम स्कीम आपको अवेलेबल है, कोई उसमें ओपेकनेस नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आपको स्कीम है, सेम स्कीम आपको मिला है। तो एनपीएस को साथ ही साथ हम ये हाईलाइट करना चाहेंगे कि हमारी हम अवेलेबल है फेसबुक पे भी, और हमारे यूट्यूब चैनल है एनपीएस की पाठशाला। इसमें करीब करीब 85 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, कुछ कुछ स्मॉल टॉपिक्स पे 5-5 मिनट का वीडियो, जैसे म्यूचुअल फंड और एनपीएस में क्या फायदा है, एनपीएस में रिटर्न्स कैसा है, कौन सा पीएफएम अच्छा है, एनपीएस में टैक्स बेनिफिट कैसा है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ मुझे क्या फायदा है एनपीएस में, कॉर्पोरेट हूँ मुझे क्या फायदा है एनपीएस में, विड्रॉवल कैसे करें, कौन सा फॉर्म भरें, कहाँ हम भरें, क्या क्या केवाईसी दें, टीयर 2 क्या है, कई सारे वीडियोस हमने दिए हैं। ये सारे वीडियोस एनएसडीएल के एम्प्लॉयज ने ही बनाया है इन हाउस। आप इन वीडियो के द्वारा भी एनपीएस की जानकारी ले सकते हैं। तो विद दैट नोट मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। नाउ ओवर टू यू अनूप, हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे थोड़ी देर। थैंक यू। So thank you very much, Mr. Bhavani. I think it was really a wonderful session, very simplified. You have clarified most of the things, and there is no doubt in terms of flexibility and cost के हिसाब से I think इससे अच्छा प्रोडक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है. So everyone should have it. जितना 3.7 करोड़ लोग हैं, लेकिन अभी जिन लोगों को नहीं जुड़े हैं एनपीएस से, मुझे लगता है उनको शायद पता ही नहीं है, इसकी वजह से ही नहीं जुड़ पाए हैं तो कॉर्पोरेट में। तो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आई थिंक एनीवन फ्रॉम द ऑल द ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स who have joined today they can unmute themselves or ask any question on the chat box also for any questions which you have. Mr. Anup and Mr. Bhavani would be happy to answer.
Sir, Yeah, Mr. Ajay, please. yeah, good evening to all. So, this was a nice presentation, and I think that this is really eye opener for us, especially for me. But there are little uh, small questions which I will say that probably most of the people might be knowing, but we just want little clarity on that. Say, for example, if a person right now is going for a small NPS program through the corporate of 4,000 or 5,000 rupees per month, which is approximately 48,000. So there are few schemes in that. One is that the expectation of return in investment. Another is purchase annuity and annuity rate. So उसमें हमें थोड़ा सा clarity चाहिए था how to calculate so that a person can go exactly the what appropriate amount he can go for. And in that also there is one continuity in that particular question. Your pension corpus at retirement with lump sum and annuity value. How to differentiate? मतलब एक layman कैसे समझेगा उसको? Okay, sir. I'll just give the answer for that question. It is really basically basic question, but it is really very relevant for every member of the NPS. हर कोई जानना चाहता है कि एन्यूटी में कैसे हम डिसाइड करें, मतलब कितना हमको पेंशन मिलेगा जो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से. So just इसके लिए I would like to just tell you that we had given a pension calculator. So basically this calculator will just take some basic inputs from the individual कि आप हर महीना कितना contribution दे रहे हैं. तो आप उसमें अगर अपना current date of birth and your monthly contribution which is going to be invested into NPS scheme एंड वहां पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं. एवरेज जैसे हमने देखा है पिछले 10 सालों में इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9% के रेंज में रिटर्न है. सो अगर आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं then it will show you how much corpus it will accumulate at the time of 60 years. तो अभी 60 इयर्स में जो कॉर्पस है वो आपको वो बताएगा. दिस इज एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. And with that there is a two component. One is called annuity and another one is lump sum. तो अगर आप lump sum जो है वो आप टोटल विड्रॉ कर लेते हैं 60% मैक्सिमम अलाउड है. 40% जो है आपको जो है उसमें आप उसको पेंशन में लगा सकते हैं. बट इट्स नॉट दैट कि आपको मिनिमम 40% ही लगाना है. बहुत लोग जैसे ज्यादा पेंशन की इच्छा रखते हैं तो दे कैन कन्वर्ट देयर 40% इनटू 100% ऑल्सो, राइट. अब जब आप 100% करेंगे तो आपका महीने का जो पेंशन होगा दैट विल इंक्रीज. अभी आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि एन्यूटी के रेट्स क्या हैं, एंड देयर आर 10 एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर, हाउ टू कैलकुलेट कौन सा एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर कितना रिटर्न्स दे रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने एक टूल्स दिया है विच इज कॉल्ड एन्यूटी कैलकुलेटर. अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे इन द इंपॉर्टेंट लिंक वी हैड गिवन एन्यूटी कैलकुलेटर. तो एन्यूटी कैलकुलेटर का काम क्या है? बेसिकली इफ यू जस्ट सिंपली पुट सम बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपका कितना कॉर्पस है और आपकी करेंट एज क्या है, या आप जो है डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इट विल प्रोड्यूस ए मैट्रिक्स जहां पे जो भी एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर है और उनके स्कीम वाइज आपको दिखाएगा कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको मंथली पेंशन इतनी मिलेगी. So basically this is a tool, it will help you to identify कि आपका मंथली पेंशन कितना बनेगा, राइट. बट प्लीज माइंड इट, क्योंकि आपको पता है these are dependent on the interest rate, और इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप आने वाले 20 से 25 सालों का पीरियड लेंगे, सो ऑब्वियसली at that point of time whatever interest rate would be there that will depend on that factor. तो करंट सिचुएशन में जो रेट्स हैं उसके बेसिस पे आज आप देख सकते हैं कि आपका मंथली पेंशन कितना बनेगा. सो दीज आर वेरी स्मॉल टूल बट वेरी वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई कि कौन से एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर को आपको चूज करना चाहिए, कहां से आपको पेंशन लेना चाहिए. अगेन देन एन्यूटी स्कीम्स हैव डिफरेंट ऑप्शन आल्सो, बिकॉज इफ यू सी a person who is having more dependent, so obviously वो क्या स्कीम लेंगे? फर्स्ट ही विल ट्राई टू कवर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड देन स्पाउस, एंड देन चिल्ड्रन. तो वहां पे क्या होगा? बेसिकली द
the coverage is larger. आप पेंशनर को पेंशन दे रहे हैं, देन योर स्पाउस इज गेटिंग पेंशन, उसके बाद जो पैसा है दैट इज अगेन रिटर्न टू द योर नॉमिनी. इन दैट केस योर अमाउंट विल बी लेस बट द कवरेज वुड बी लार्जर. सो एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल कैन डिसाइड कि उनको कौन सा पेंशन स्कीम लेना चाहिए. So these are very helpful tool, and every individual can use this if they are going for the retirement. They can decide. अगर आज आप expect करते हैं कि आज मेरे को retirement में अभी 10 साल है and I wanted this much amount, तो आप उस calculator में monthly contribution जो है आप बढ़ा भी सकते हैं. अगर मान लीजिए आपके corporate के through it is restricted 10%, but आप उसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली क्या होगा, योर कॉर्पस वुड बी लार्जर एंड यू विल गेट द लार्जर पेंशन फ्रॉम द स्कीम. एंड द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट इज ऑल्सो, आप जब स्कीम से जो ये 60% लेते हैं, दैट इज अ टैक्स फ्री इनकम इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल. इस पे कोई टैक्स नहीं लगता. इट्स अ ट्रिपल ई कैटेगरी प्रोडक्ट. और जो एन्यूटी है वो भी आपका जो है, जब एन्यूटी में ट्रांसफर होता है देयर इज नो टैक्स. बट एनी पेंशन और एनीथिंग व्हिच इज कमिंग, अगर वो आपकी प्रिस्क्राइब लिमिट को एक्सीड करती है, ऑब्वियसली देन यू हैव टू पे द टैक्स. सो एक तो जीएसटी कंपोनेंट है जो 1.8% होता है जब एन्यूटी में ट्रांसफर करता है, वो भी इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है. तो अगर आप कोई एन्यूटी स्कीम जो है दूसरे एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर से स्कीम के अलग से लेते हैं तो वहां पे आपका जीएसटी कंपोनेंट पड़ता है. लेकिन अगर आप एनपीएस के थ्रू एन्यूटी बाई करते हैं तो वहां पे ये फायदा भी आपको मिलता है. सो ये सारी चीजें हैं जो कि एक इंडिविजुअल की को हेल्प करती हैं कॉर्पस को बढ़ाने में, एन्यूटी को बढ़ाने में. होप सर ये आपके डाउट को क्लेरिफाई करता है. वी आर स्टिल, कुछ भी अगर क्वेश्चन रह गया तो डेफिनेटली विल टेक इट फर्दर. No, sir. Most of the things you have already cleared, and this was a very good presentation. इसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिला. Although it is just you're right. We are a beginner in this particular scheme, but इतना broadly हमें कभी भी इस तरह का विजन नहीं मिला कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं तो मतलब वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ गेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड एज इट शुड बी. तो ये हम रियलाइज तब करते हैं जब ऑलमोस्ट वो एज क्रॉस हो गई होती है. So thanks for this particular presentation. Thank you very much. Thank you very much, sir. Such a valuable input. Thank you. So, any further questions? If anyone has, I just wanted to ask before anyone else can ask. अभी जैसे अनूप जी ने बोला कि जो 60% withdrawal amount है at the age of 60, that is tax free. So even if I am putting more than 50,000, suppose I am putting every year 1 lakh rupees. So or 2 lakh rupees, so still that money will be 60% of that will be tax free, or only up to 50,000 for which tax exemption is available, of that corpus 60% will be tax free? Very good question by Praveen sir. So basically it is on the corpus which is available at the time of retirement. It is not restricted to the 50,000 limit which is given under section 80 CCDB 1B. So अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे जो कॉर्पस बनेगा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन एंड द ग्रोथ इज एज एडेड टू दैट वैल्यू. So from that corpus 60% would be totally tax free income in the hand of subscriber, and जो 40% है आप उसको annuity में convert करके you can start your pension. Right. Thank you. I think that is really very valuable, information, because today when we are going for equity investment, even there today's tax structure allows above 1 lakh income to be taxable at 10%. But if I am investing more money here, and I know that for sure that for 10 years equities will give me better returns, so I will put more money through NPS into equities, and I will also get some tax-free income also. That is good enough. So that's right. So thank you. Any other question? Anyone from the corporate Reliance wants to ask? ये जो अनूप जी, जो एन्युटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं? ये मतलब एन्युटी वाला जो पोर्शन है वो it also goes into share market, or it's in government bonds or something like that?
Sir, basically annuity, if you see, these are the insurance company which have got the license from IRDA. So basically, as per the IRDA norms, they have to invest into the schemes. तो IRDA इनके स्कीम्स को इवेल्युएट करता है, उनमें सर्टेन परसेंटेज होते हैं कि कितना परसेंट इनको जो है बॉन्ड्स में लगाना है, कितना इक्विटी में, बट दे इशू द बॉन्ड, दे हैव द गारंटी टू द सब्सक्राइबर. अगर आपकी पेंशन फिक्स हो गई कि आपको हर महीने 10,000 रुपए मिलने हैं, तो वो 10,000 इंश्योरेंस कंपनी को देना है. अभी वो उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द इंश्योरेंस IRDA, एंड उनको टाइम टू टाइम दे गिव द इंस्ट्रक्शन आल्सो कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो को ये करते हैं. तो वहां पे कुछ लिवरेज होते हैं, बट एज एन सब्सक्राइबर यू एंड आई कैन बी एश्योर्ड कि हमारा जो मंथली पेंशन अगर 60 साल में फिक्स हो गया, तो आई विल गेट जो है पेंशन का जो भी टेन्योर है, तब तक वो पेंशन मुझे और आपको मिलती रहे. तो ये ऑप्शन तो एट द टाइम ऑफ एग्जिट वी हैव टू चूज, नॉट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ दिस. करेक्ट सर. ये बेसिकली आप स्कीम में देखें तो इसमें दो फेजेस हैं. फेज 1, when you become member of this scheme, that is after that you are into accumulating phase. accumulating phase में आप salaried employees हैं या individual capacity में open करते हैं, तो every month और जैसे भी आप प्लान करते हैं, आप वो स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसा आपका जो भी ग्रोथ होती है उसमें ऐड होता जाता है. एंड व्हेन यू रीच एट द एज ऑफ सुपर एन्यूशन, जो कि 60 ईयर है, उस टाइम में क्या होता है, यू हैव अ चॉइस. अभी आप उससे कितना परसेंट पेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितना परसेंट लमसम लेना चाहते हैं, बट द मैक्सिमम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर कि आप जो है 60% से ज्यादा लमसम नहीं ले सकते. मिनिमम आपको 40% जो है एन्युटी में लगाना ही होगा. बट इफ समबडी वांट टू इंक्रीज दैट एन्युटी पोर्शन, दे कैन डू इट. एंड उस टाइप पे आप डिसाइड करते हो, जो भी आपके पास एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है उसमें से जो भी आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन लगता है आपके लिए, आप चूज करते हो, और वो उसके बेसिस पे आपकी मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाती है. बट इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन कंपलसरी है और डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो तो आई थिंक यू हैव टोल्ड मी डिसकंटिन्यू आल्सो. यस, बेसिकली क्या है सर, आपके अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इट इज नेसेसरी टू गिव 1000 कंट्रीब्यूशन इन ए फाइनेंशियल ईयर. अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, सो टू कीप योर अकाउंट एक्टिव, अगर आप किसी वजह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर जो है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है. बट फॉर दैट ऐसा है कि आपको कोई अलग से चार्जेस बेयर नहीं करने पड़ते, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है. सिंपली यू कैन कंटिन्यू योर अकाउंट जस्ट गिविंग द कंट्रीब्यूशन. आप जो है कंट्रीब्यूशन दे दीजिए, आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, यू कैन स्टार्ट योर अकाउंट. और जो भी कॉर्पस अकाउंट में रहता है ड्यूरिंग दैट फ्रीजिंग पीरियड ऑल्सो, उसमें जो इंटरेस्ट है उसकी ग्रोथ होती रहती है. एनएवी जो है वो डेली बेसिस पे उसका रिवाइज होते रहता है, तो उसका बेनिफिट जो है वो सब्सक्राइबर को हमेशा मिलता है. तो आपका पैसा इन्वेस्टेड है, अगर किसी वजह से भी आप जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो है ग्रोथ का बेनिफिट मिल रहा है. ओनली फैक्टर इज कि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करवा पाएंगे अगर आपका अकाउंट जो है मिनिमम कंट्रीब्यूशन की वजह से फ्रीज है. अगर आपको उसमें कुछ अपडेट कराना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना अकाउंट एक्टिव करना होगा. देन यू कैन डू द नेसेसरी चेंजेस इन योर प्रान अकाउंट. एक चीज और बताइए इसमें, आप पीपीएफ वर्सेस एनपीएस में विच इज बेटर? देखिए सर, वैसे भी बताया गया है कि आप जब बुके होते हैं, इट्स अ डाइवर्सिफाइड फील्ड. दोनों सरकारी स्कीम्स हैं. आप जो एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, जो कि पीएफआरडीए एक्ट पार्लियामेंट से पास किया गया है, और पीपीएफ भी जो है वो भी गवर्नमेंट की गारंटी उसमें रिटर्न्स पे रहती है. तो आप जो है देखिए, कोई भी चीज क्या है कि आप जब उसमें कुछ टाइम तक मेंबर रहते हैं, देन यू रियलाइज कि आपको कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, देन यू आर इन ए पोजीशन टू टेक द बेटर डिसीजन. ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज जिसके मेंबर बन जाते हैं तो आपको हर महीना इन्वेस्ट करना है. यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस स्कीम, और उसके बाद जब आपको लगता है कि इसमें बेनिफिट्स अगर ज्यादा दिख रहे हैं, तो ऑलवेज यू कैन इंक्रीज योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टेक द बेनिफिट. सो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप बेसिकली जो है, इट इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, एंड ये जो स्कीम्स हैं आपको आपके रिटायरमेंट में काफी हेल्पफुल हैं. अगर आपको देखें, एडिशनल टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको फायदा देती हैं. तो इट शुड बी इन योर बुके.
तो जिस तरह से जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें एनपीएस विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट. One last question. Lot of colleagues and friends do not have this account. So how can they start this account opening? That step, if you can clarify, so it will be better. Otherwise, they will forget again after this speech, and then they will go on their works and again then forget everything. Okay, sir, I'll just explain it again. So देखिए, basically as an corporate employee का अगर अकाउंट ओपन होता है तो वो तो कॉर्पोरेट के थ्रू रूट होता है, लेकिन इसमें सबसे इस प्रोडक्ट की ब्यूटी ये है कि आप इंडिविजुअल में भी अकाउंट खोल सकते हैं. अभी जो हमारे प्रेजेंटेशन में हमने एक लिंक दिखाया था enps.nsdl.com, वहां पे जाकर के कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने को एनपीएस का मेंबर बना सकता है. उसके लिए जरूरी क्या है? उनका आधार नंबर और आधार में मोबाइल रजिस्टर होना चाहिए. तो उसके संग आपको 2-3 चीजें पहले से करके रखनी पड़ेंगी. आपका पैन कार्ड और आपके कैंसिल चेक और सिग्नेचर का फोटोग्राफ. ये 4 चीजें आप रेडी रखिए और उस लिंक पे जाकर के सिंपली आपको जो है अपना डिटेल्स डाल करके वहां पे आप जो है वो यूआईडी की साइट पे आपको ले जाता है और वहां से एक पैकेट डाउनलोड होता है जिसमें आपसे आधार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आपका प्रोफाइल, उसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वो जब आप डाउनलोड करके वहां पे इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑटो फिल्ड हो जाता है. जो हमने स्कीम के बारे में जानकारी दी वो सारी स्कीम सेलेक्ट करके आप जो है विद इन 15 से 20 मिनट में अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं. तो ये अकाउंट जो है आपको इंस्टेंटली ओपन हो जाता है. इसके बाद आप चाहें तो अपना अकाउंट जो है आप अपने एचआर को इंटीमेट कर दीजिए, क्योंकि हर कॉर्पोरेट में कई जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कई जगह पे जो है स्कीम सर्टेन सेट्स ऑफ लोगों के लिए होता है, वॉलेटरी होता है. तो आप अपना अगर अकाउंट एक्टिव है तो उसको आप कॉर्पोरेट के थ्रू भी मैप कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि आप अकाउंट आप इमीडिएट खोल लीजिए. वहां पे आपको जो है ईएनपीएस के थ्रू आधार के एनएसडीएल की साइट पे जाकर के वहां पे आधे घंटे में प्रान नंबर आपके पास आ गया. मिनिमम कंट्रीब्यूशन से आप स्टार्ट कर लीजिए एंड देन यू कैन जस्ट गिव रिक्वेस्ट टू योर एचआर जो है आपका पीओपी के थ्रू उस अकाउंट को कॉर्पोरेट के संग मैप करा देगा. सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो है आप खुद ही बिना कोई पेपर के उसको ई साइन कर दीजिए. तो कोई पेपर जनरेट नहीं होता है आपका. विदाउट एनी पेपर योर अकाउंट इज एक्टिव. Means tier 1 also we can open without corporate help and later on we can give to account to HR. Yes. Okay. दोनों ऑप्शन है सर. यू कैन अरेंज विद एचआर ऑल्सो. उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेशन होता है, तो अगर एम्प्लॉयर उसको एम्प्लॉयमेंट डिटेल को सर्टिफाई करके देन दे हैंड ओवर टू द पीओपी, तो उस प्रोसेस में कई बार टाइम लग जाता है. तो आप ये प्रोसेस भी अडॉप्ट कर सकते हैं जहां पे आप खुद से अकाउंट खोल करके उनको इंटीमेट कर दीजिए एंड थ्रू इंटरसेक्टर अकाउंट गेट मैप्ड विद द कॉर्पोरेट. Okay. Thank you. वेलकम सर. I think lot of clarity has been given by Anup ji. काफी चीजें मतलब मुझे भी मालूम पड़ी नहीं रहा, तो सिंपल तो है ही. उसके अलावा अगर मुझे लगता है कुछ और क्वेश्चंस किसी के हो इन दिस इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि सब लोग इतने बिजी और व्यस्त रहते हैं और आजकल वैसे भी 5G लॉन्च की वजह से सब लोग काफी टाइड अप हैं. तो अगर आप लोग ये अकाउंट खोलना है तो जैसा कि बताया गया कि सिंपल सा enps.nsdl साइट पे जाकर के आप खोल सकते हैं, तो दैट कैन बी डन. एक शायद किसी ने और पूछा है इस पे सवाल, कैन वी मूव टू tier 2 to tier 1 or we need to have 2 different NPS accounts? बेसिकली सर इसमें क्या है कि टीयर 2 अकाउंट इज जस्ट एन सप्लीमेंट टू टीयर 1 अकाउंट. तो अगर आपका टीयर 2 एक्टिव है तो आप वहां से टीयर 2 से जो है इन्वेस्टमेंट को टीयर 1 में मूव कर सकते हैं, क्योंकि टीयर 1 अकाउंट जो है ये नॉन विड्रॉल अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है. तो आपको ये सुविधा है कि आपका जो लिक्विड अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए और उसको जब भी आपको लगता है टैक्स का बेनिफिट लेना है, ऑफिस में डिक्लेरेशन देना है, तो यू कैन मूव द फंड फ्रॉम टीयर 2 टू टीयर 1 अकाउंट और वो उसका आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं. सो दैट इज ऑलवेज पॉसिबल. Good. Okay, I think that's very very important information because tier 2 के मामले में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है और इसे नहीं भी खोलते हैं. तो tier 2 is also very good, I find. That's very important because it gives higher return also, better than
savings, and as you said, it's just like a liquid account. We can withdraw anytime. So what is the is it T+1 इसका redemption पैसा निकालने के लिए हमें कितने दिन में आ जाता है पैसा अकाउंट से? So basically, if you see, withdrawal from tier 2 account is complete online. आप मोबाइल ऐप या ऑनलाइन अपने अकाउंट में लॉग इन करके you just go to the redemption process and you will get the credit in your account in T+3 days. So T+3 में जो है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. तो ये आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप जितना भी यूनिट है 100% रिडीम कर सकते हैं, या पार्शियली आपको करना है, या फिर उसमें स्कीम वाइज भी है. अगर आपको लगता है कि केवल मुझे जो है डेट से ही पैसा यूनिट रिडीम करना है, सो यू कैन सिलेक्ट द डेट स्कीम और उतना ही यूनिट आप डेट से जो है रिडम्पशन का रिक्वेस्ट दे दीजिए. वो डेट की यूनिट रिडीम करके जो है आपके बैंक का जो अकाउंट है उसमें एसोसिएटेड ऑटोमेटिक उसमें क्रेडिट हो जाता है. So basically it is a very convenient process. ऑनलाइन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में ही जो है ज्यादातर ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप ये इंस्ट्रक्शंस जो है आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और आया है, इफ वी हैव प्रान नंबर अंडर पीएम अटल पेंशन योजना, इस दोनों का कोई लिंक है क्या? इज देयर एनी लिंक बिटवीन द टू? बेसिकली इफ यू सी द अटल एपीवाई अकाउंट इज क्या है, जो अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोले गए हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है गारंटेड स्कीम है. सो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो टारगेट सेगमेंट था विच इज डिप्राइव्ड ऑफ, तो उनको बेसिकली सोच करके अकाउंट्स की फैसिलिटी दी गई थी. एपीवाई में जो है बेसिकली क्या है 1000 से लेके 5000 तक पेंशन का उसमें व्यवस्था होती है. तो एज के हिसाब से होता है, उसमें हर महीना ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट होता है. और ये अकाउंट जो है आप मतलब दोनों अकाउंट, रेगुलर एनपीएस रेगुलर एंड अटल पेंशन योजना का अकाउंट दोनों आप पैरेलली मैनेज कर सकते हैं. इसके लिए आपको जो है सेम अकाउंट जो है रेगुलर एनपीएस में माइग्रेट नहीं होता है. तो बेसिकली अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हाउसवाइफ के लिए, या जो भी है वो खुद से भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपना अकाउंट ऑनलाइन, और ये बैंक से ऑटोमेटिक डेबिट होते रहता है. तो 60 साल के बाद जो है जो भी आपने पेंशन चूज किया है वो पेंशन आपको हर महीना मिलता रहेगा. अच्छा, टीयर 2 से जो विड्रॉल है उसका टैक्सेस कैसे मैनेज होता है? सर इसमें जो है जो भी इनकम जनरेट होता है उसमें टीयर 2 में बेसिकली दैट विल गेट एडेड टू द योर टोटल इनकम, और उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है. इसमें रेगुलेटर के द्वारा जो है पीएफआरडीए के द्वारा जो है सीबीडीटी को भी बहुत सारे जगह पे प्रपोजल दिया गया है, लेकिन जो थोड़ा क्लियरिटी अवेटेड है. सो टिल सच टाइम जो है लोग इसको स्कीम से जो है जो भी इनकम्स होती हैं उसको टोटल इनकम में ऐड करके जो है उसका टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं फिलहाल. तो टीयर 2 से निकाल के टीयर 1 में डाल लेंगे, देन देयर इज नो एडवांटेज ना, क्योंकि वो तो टैक्सेबल हो जाएगा जो भी उसमें है. हाँ मतलब जो सर अगर ट्रांसफर करते हैं जो इंक्रीमेंट है द ग्रोथ विच हैज हैपेंड इन योर पोर्टफोलियो, उसके ऊपर आपका जो है टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है. So ideally individuals will calculate and they should pay the tax. I understand there is no tax payable at the time of transfer from tier 2 to tier 1. Tier 2 to tier 1 transfer करने में there is no tax applicability. Yes, but there is no tax applicability during the transfer. But when individual files their income tax return, so whatever the growth has happened in the tier 2 accounts, so that need to be just filed during their income tax return. So is that a capital gain tax or it is an income tax? I think it will be a capital gain tax. Basically, sir, that that proposal has given by the PFRDA, that clarification is awaited. So CBDT Income Tax Department has not yet clarified on that front. So we are expecting कि जब इसके ऊपर और क्लैरिटी आ जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, सो प्रॉब्ली इसके ऊपर और ज्यादा जो है क्लियर. अभी इसको क्या इंटरेस्ट इनकम लेते हैं या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जाते हैं, कैसे करते हैं मतलब, या आपके स्लैब के हिसाब से मतलब? स्लैब के हिसाब से जो इनकम है उसको आप ऐड करके उसके हिसाब से टैक्स कंप्यूटेशन. ओके, राइट. I think we had
many good questions and lot of good clarifications which have come in. So if there are any further questions, we would be happy to take a couple of more questions, or else we would be another 2 minutes. We can formally close the session also. So anybody wants to ask any further questions, you may please ask by unmuting or writing on the chat box also. So as I can see, there are no further questions. So we would, रविंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? Quite a good informative session, and a lot of clarity has come during question and answer session. And Mr. Anup ji and Bhavani ji both has given quite comprehensive and clear presentation. So it is clear in everybody's mind. And I assume a lot of our colleagues and friends will go for this NPS account, and especially for the younger age people, they should immediately go for this, so they can accumulate the good corps. So thank you, Praveen ji. Through you, we have come to you NSDL officials, and we got the good information. And I will ask our team members for future any queries there or any support is required, they can go to Avok India office, and that website is also there, and that number is known to everybody, and they can take my support also, so I can guide them. So Absolutely. Thank you, Praveen ji, and the NSDN team. Thank you very much. I think it's been a wonderful and very, very clearly described. Although it's very simple to invest into this. I think one question has come from Mr. Alok Pandey on limitation of investment minimum to maximum. You want to take it? Yeah, please, definitely, sir. We'll take it this question. So minimum contribution is 500 rupees in tier 1 account. So any individual want to just make the contribution, so they can do minimum 500 contribution in their account, tier 1 account. But for maximum, there is no limit. So individual, if they have the corpus, funds, they can always do the amount which they wanted to invest in their account. So there is no limit prescribed, but yes, income tax department has given that tax benefit, which is limited to the sections provided by the income tax department. So that is the case. So there is no limit for the upper investment part. So if you have 10,000 crore, you can suddenly invest and take the benefit. Yeah, definitely, sir. Okay. Is there this account cannot be opened, tier 2 cannot be opened by corporates, or they can also do it? No, any individual, if they have active tier 1 account, they can. No, entity in terms of corporate can also open a NPS account? No. Yes. Basically, if you see, the individuals are getting a member of the NPS. So again, there is a category, different categories are there. You see, the corporate is one category. As an individual, I open my account, so I come under All Citizen of India model. Again, I join a Reliance Industry. So my account can port to the Reliance Industry. So my category would change from All Citizen to the corporate category. So I map to the corporate. And as an individual, I can hold tier 1 is a mandatory account. So if I have the active tier 1 account, I can always activate my tier 2 account. So I can activate my tier 2 account. I can contribute to in that, but that is a voluntary account. So, but obviously my corporate will not going to invest into that account. It is my own account. So I can invest, and whenever I want, I can withdraw from that account. So my question was that. So the answer to your question is no. By a company also, private limited company, that for investment purpose, a company or a partnership firm? No, sir, it cannot. It has to be, NPS is an individual account. I know that. Corporates cannot invest in NPS.
Anup, Yes. that Anup was explaining was, Anup ji jo explain kar rahe the, he was explaining from the perspective of an employee who is mapped Employer. to a corporate. Correct. Right. I got it. So I was just wondering because he said tier 2 is an investment account. So I thought if a non-entity or non-individual can also, like a partnership firm or a company, can they just, but that is not possible there. So सर ये पेंशन का अकाउंट है, पेंशन हाँ, ये pension इंडिविजुअल का के लिए account है, होगी, that's fine. पूरा सिस्टम ही नेशनल पेंशन सिस्टम है. Correct. I got it. Thank you. I think that's important. So I think very well clarified and answered questions also. So thanks to Anup ji and Mr. Bhavani and also Mr. Nitin Joshi, all the participants who joined on time from Reliance Industries Geo Division, and also Mr. Ravindra Prakash for giving us this opportunity and letting us do this subscriber awareness program. So our heartfelt gratitude to all of you. And as Mr. Ravindra was saying, that anytime you have any queries, questions, while you can directly reach out to NSDL, they have given the contacts, and of course on the website, you can also reach out to Evoke India. Our mission is in terms of financial literacy, investor education. Our whole existence depends upon that, and we are pursuing that very passionately. And we are thankful to NSDL for giving us this opportunity to be associated with them and bringing this knowledge to all of you. So thank you very much to all of you. And with this, I formally we close this session. Thanks to all the team members of Evoke India also, and NSDL also. Thank you very much. Thank you very much, sir. First of all, I would like to express our gratitude and just sparing valuable time by the Reliance India team and Evoke India Foundation just arranging such a wonderful program. And just our basic initiative is that people should be aware about national pension system, and they should plan for their retirement so that it can act as a support system while they get retired from their active life. With this presentation, we expect that more and more people from the organization will join into NPS and take this benefit. And we would always love to do such these kind of program further for the larger people. And when this situation will get normalized, so definitely we'll also love to come to your campus and just give in-person presentation also. So with this, we thank you, Ravinder ji, and all the colleague and staff member of Reliance Industry from Lucknow section, and also Evoke India Foundation. They have given us such a wonderful support in this program. From NSDL team, we really just appreciate your initiative. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.